Namaskar. A warm welcome to all of you on our YouTube channel CA Sansaar. Myself CA Vivek Khurana, and today we will discuss on a very important topic in bank branch audit, practical approach in filing LFAR. So we'll basically cover advances to be filed in the LFAR. So before going to start, my request to all of you, please subscribe to our YouTube channel CA Sansaar and also press the bell icon so that whenever we upload new video, you will get it notified. So practical approach in filing LFAR. In our previous videos, we had discussed about the audit planning and the audit program, and then we had discussed about the audit of advances, IRAC norms, and then audit of agriculture advances, part 1, part 2. Then we had also discussed about the case studies of NPS. So, by chance, if you missed that videos, please visit CA Sansaar YouTube channel and check it's into the playlist of the bank branch audit. So before that, one disclaimer is there. All these are my personal views and can't be construed the views of the ICI, CA Sansaar, or the any other person or any other authority. And don't treat it like professional or the legal opinion or the professional or the legal advice. And purpose of this video is to spread knowledge, information, and the awareness, and shall not be treated as solicitation in any manner or for any other purpose whatsoever. Please also refer ICI guidance note, RBI master circular, RBI master directions, circulars, notification, and bank policy. So, revised format of LFAR. So, this was revised last year, and now we can say that major part of our audit are based on the LFAR. And in our previous video, when we were discussing about the audit planning and the audit program, I told everyone, please take the LFAR as part of your audit planning and the audit program. Now it's not like that कि आप last में LFAR file कर सकते हैं, and it's also not like that yes, no, not applicable. We have to give the detail. Lots of questionnaires are there. Even they are asking for our opinion, like whether DP is calculated according to the RBI norms or the bank policy, whether the stock statements are receiving by the bank on regular basis. Many things are there. Even credit rating, whether the bank has received the credit rating from the authorized credit rating agency, and whether it's true. Many things, and we have to give our comments on that. Even I was giving the lecture in the Bhubaneswar. At that time, our honorable president of ICI, Dr. Devashish Mitra was also there, and he asked me, Vivek ji, Khurana ji, please communicate to the members so that give the maximum things in the LFAR, give your maximum opinion in the LFAR. It's not like that, yes, no, not applicable, yeah, we can't do it, copy paste from the last year, or now it's not possible to do it from our articles. That we have to do. And this is our best. So, my suggestion, my request to all of you, please at least 2 times or 3 times go for the questionnaires of the LFAR. We will give you the link. अगर आपके पास रिवाइज लफार फॉर्मेट नहीं है, we will give you the link. You can download it from the RBI website. RBI website से आप रिवाइज लफार फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं, and you can check it out the questionnaire. Audit advances part ka to today we will discuss, and we will also discuss what would be the audit procedure, what would be the suggestion, what can be your comments. So it's divided into the 4 parts. जो रिवाइज लफार फॉर्मेट है, फर्स्ट पार्ट इज टॉक्स अबाउट द एसेट्स. तो आपको एसेट्स के ऊपर काफी सारे क्वेश्चन है रिगार्डिंग द कैश, then balance with the RBI, State Bank of India, or any other banks. Then on third part is the money at call and short notice, and fourth part is investment, fifth part is advances. तो advances के ऊपर हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे. Then next is other assets.
देन सेकंड पार्ट इज ऑफ द लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में आपको डिपॉजिट्स के ऊपर, अदर लाइबिलिटीज लाइक बिल पेबल, सन्डे डिपॉजिट, देन द कंटिजेंट लाइबिलिटी, देन कुछ क्वेश्चंस हैं ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस, एंड देन फोर्थ पॉइंट इज जनरल। General where gold, bullion, security items, books and records, inter-branch accounts, frauds, implementation of KYC, AML guidelines, management information system, miscellaneous. So this is how they had divided the long form audit report. So we'll discuss today of the reporting of advances in LFAR. So advances, it's the fifth number in the assets column. So LFAR में we have to give detail regarding the list of account examined for the audit, credit appraisal, sanction disbursement, documentation, then the review monitoring system, assets clarification जो IRAC norms के है, and the non-fund facilities. So let's see one by one. The first thing in the advances, they talks about the general instruction. तो उन्होंने जनरल इंस्ट्रक्शन दिया है कि रिगार्डिंग यू हैव टू गिव द डिटेल्स। अब दे आर नॉट आस्किंग, आपसे वो ये नहीं पूछ रहे कि आपने एडवांसेस चेक किए है या एडवांसेस का ऑडिट किया है। यू हैव टू प्रोवाइड द डिटेल कि आपने कौन कौन से अकाउंट्स एग्जामिन किए हैं या कौन कौन से अकाउंट्स का आपने ऑडिट किया है। और आपको ये भी नहीं कहना कि सिर्फ 10 अकाउंट्स या 12 अकाउंट्स या 15 अकाउंट्स, नो, you have to provide the details like account number, account name, बैलेंस क्या है ईयर एंड पे, अगर फंड बेस्ड एक्टिविटीज है, अगर नॉन फंड है तो उसका क्या बैलेंस है, देन द टोटल, एंड देन आपको ये भी बताना है कि आउटस्टैंडिंग कितना बैलेंसेस हैं या कितने आउटस्टैंडिंग है ब्रांच के, और आपने कितना परसेंटेज चेक किए। तो ऑल डिटेल्स यू हैव टू मेंशन रिगार्डिंग द लार्ज एडवांसेस। तो लार्ज एडवांसेस में जो पहले क्राइटेरिया था दैट वाज चेंज। तो अब क्या है आपका लार्ज एडवांसेस, कौन से लार्ज एडवांसेस चेक करने हैं, दैट्स द इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग aggregate balance of the fund based and the non fund based advances of the branch are rupees 10 crore, whichever is less. So this is the limit regarding the large account. So for example, in a branch, total advances जो उनके total advances हैं, it's a 200 crore fund based and the non fund based is, तो in this case 10%, what's the 10%, 20 crore or the 10 crore, whichever is less. तो ये जो लार्ज अकाउंट है उसको तो पूरा आपने डिटेल में चेक करना है, उसकी पूरी डिटेल प्रोवाइड करनी है। एंड द अदर अकाउंट्स, जो अदर अकाउंट्स हैं, दैट आल्सो यू हैव टू मेंशन कि आपको पूरी डिटेल देनी है। एंड आल्सो यू कैन टेक द SA30 उसमें ऑडिट सैम्पलिंग के लिए कि कौन कौन की फैसिलिटीज है, उसमें कितनी फाइल्स आपने चेक करी है, एंड यू हैव टू प्रोवाइड द डिटेल्स। एंड आल्सो दे हैव प्रोवाइडेड इनटू द इंस्ट्रक्शंस कि आपको जो ये लार्ज अकाउंट है, जो लार्ज अकाउंट है उसको तो पूरा आपने डिटेल में चेकिंग करनी है, उनका ट्रांजैक्शन ऑडिट, अकाउंट स्पेसिफिक डिटेल। तो ट्रांजैक्शन ऑडिट हैव ए वेरी वाइड मीनिंग। ट्रांजैक्शन ऑडिट मींस यू हैव टू चेक द ट्रांजैक्शन इन दीज अकाउंट्स, उसका ऑडिट आपने चेक करना है। एंड आल्सो स्पेसिफिक डिटेल्स लाइक कोई इनहेरेंट वीकनेस तो नहीं है अकाउंट्स में, या फिर आपकी स्टॉक स्टेटमेंट रिसीव हो रही है ऑन रेगुलर बेसिस पे, डीपी के बेसिस पे। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपको चेक करनी है इन दिस लार्ज अकाउंट। एंड फॉर अदर अकाउंट्स, अदर अकाउंट्स में भी आप टेक्स्ट चेक कर सकते हैं, बट यू हैव टू कमेंट आल्सो, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, आपको कमेंट्स देने हैं। तो प्लीज मेंशन, अगर आप यहाँ पे कोई मेंशन कर रहे हो अकाउंट्स का, तो यू कांट से कि मैं चेक नहीं किया था, ओनली मेंशन अबाउट द डिटेल ऑफ दोज अकाउंट जिसकी आपने पूरी डिटेल चेक करी कि कल को बाई चांस फ्रॉड हो गया इन दिस अकाउंट, देन आरबीआई विल आस्क यू कि आपने तो मेंशन करा था कि यू हैड ऑडिट ऑफ दिस अकाउंट। सो रिमेंबर, प्लीज चेक इन डिटेल एंड देन मेंशन द अकाउंट नंबर, अकाउंट नेम, जो भी आपने चेक करे। सो नाउ विल सी स्टेप बाय स्टेप। जो फर्स्ट है क्रेडिट अप्रेजल, we have to give the comments in the credit appraisal. So I have divided into three parts. First is credit appraisal, जो as per our LFAR, and then audit procedure, जो suggested audit procedure, how you can do that, and then suggested audit comments, क्या comments आप दे सकते हो in the LFAR, and that's on you, आप क्या करते हो। I am just giving you an example, you can modify it as per your own जो भी branches, and accordingly you can do it. So first thing they had asked in credit appraisal,
In your opinion, has the branch generally complied with the procedure, instruction of the controlling authority of the bank regarding loan application, preparation of proposal for grant renewal of advances, enhancement of the limit, including adequate appraisal, documentation in respect thereof? What is your opinion are the major shortcoming in the credit appraisal? So we had a separate videos of the audit of advances. वहां पे भी हमने डिस्कस किया था कि आपने ड्यूरिंग द क्रेडिट अप्रेजल या फिर आपने डिसबर्समेंट या डॉक्यूमेंटेशन अपने व्हाट डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू चेक. तो यू कैन आल्सो चेक दैट वीडियो. एंड हेयर आपको डिटेल देनी है रिगार्डिंग द क्रेडिट अप्रेजल के. तो क्रेडिट अप्रेजल में यू कैन आस्क द bank policy and the relevant circular regarding the credit appraisal, and also the delegation power कि कितनी डेलीगेशन पावर मैनेजर के पास कितनी है, एजीएम के पास कितनी है, अगर एजीएम ब्रांच है तो यू कैन चेक इट आउट द bank policy and the relevant circular, delegation power. All these you can check it out, and also whether they are following the bank policy or the circular. Like for example, recently RBI had clarified regarding the uh, loan agreement. RBI said in some cases repayment schedule are not mentioned on the loan agreement. And also काफी सारे कॉलम्स आपने भी देखा होगा. इफ यू गो फॉर द लोन तो व्हाट बैंक मैनेजर सेड कि सर यहाँ 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 साइन कर दीजिए, बाकी हम फिलअप कर देंगे. तो आरबीआई सेड कि नो, ऐसे नहीं चलेगा. आपको पूरी डिटेल वहां पे मेंशन करनी पड़ेगी. व्हाट्स द रीशेड्यूलिंग पीरियड, व्हाट्स द प्रिंसिपल अमाउंट, यू हैव टू बाइफरकेट द प्रिंसिपल अमाउंट एंड द इंटरेस्ट अमाउंट. एंड देन आल्सो यू हैव टू मेंशन हाउ टू कैलकुलेट द एसएमए कैसे कैलकुलेशन है, एनपीए कैसे कैलकुलेशन है. तो दैट्स थिंग यू हैव टू प्रोवाइड आल्सो. ये हमने आईरेकनोम में डिस्कस किया था. दैट यू कैन गो दैट, एंड देन यू कैन मेंशन कोई डाइवेशन है, अगर कोई डाइवेशन है रिगार्डिंग द बैंक्स क्रेडिट पॉलिसी या सर्कुलर और द डेलीगेशन पावर, दैट यू कैन मेंशन. एंड देन सेकंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द क्विक मोर्टेलिटी अकाउंट्स. क्विक मोर्टेलिटी अकाउंट्स कौन से होते हैं? जो अकाउंट्स बिकम द एनपीए विद इन ए पीरियड ऑफ 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट सैंक्शन. मीन्स आज हमने फॉर एग्जांपल टुडे इज द मार्च 2022 कि मार्च 22 में कोई सैंक्शन किया लोन्स को, एंड विद इन ए 12 months के अंदर ही एनपीए हो गया आपका अकाउंट. तो इन दिस लफार रिगार्डिंग क्रेडिट प्रपोजल वी हैव टू गिव आवर कमेंट कि कोई ऐसे अकाउंट्स तो नहीं है जो क्विक मोर्टेलिटी है विद इन 12 months. तो आपको ये नहीं लिखना जो पहले हम लिखते थे इन सो मैनी केसेस इन देयर आर 3-4 अकाउंट. नो, यू हैव टू प्रोवाइड द डिटेल. कौन सा अकाउंट नंबर है, क्या अकाउंट नेम है, बैलेंस एट द एंड क्या है. तो दैट यू कैन आस्क. अब बैंक्स के पास डिटेल होगी, आप बैंक मैनेजर को कह सकते हैं कि आपके जो क्विक मोर्टेलिटी है, जो एनपीए ड्यूरिंग द ईयर है, उसकी डिटेल प्रोवाइड कर दीजिए. उसमें से चेक कर लीजिए जो क्विक मोर्टेलिटी अकाउंट्स कौन से हैं. एंड इवन इन फाइनेंशियल कमांड्स इज देयर, उसमें हैसेट और हैसकर से एच ए सी आर फिनेकल से आप चेक कर सकते हो. एंड मैं कोई हिंट भी दे रहा हूँ साथ के साथ, मुद्रा लोन चेक कर सकते हो आप. उसमें यू विल फाइंड lots of quick mortality accounts are there. So in audit comments you can mention if there are some quick mortality accounts, you can provide the detail. If there are no accounts, then also you can provide the detail कि no accounts are there, no such accounts are there. And even you have to mention कि कोई ऐसा सिस्टम है आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्विक मोर्टेलिटी के लिए, तो that also you can provide it. Then next in the credit appraisal, whether in borrower account the applicable interest is correctly feed into the system. हमें लगता है कि सीबीएस सिस्टम है, सीबीएस सिस्टम इज द फुल प्रूफ्ड कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती. बट सीबीएस सिस्टम में भी तो हमें मास्टर उसमें मॉडिफाई करना पड़ेगा. आपको मेंशन करना पड़ेगा व्हाट्स द इंटरेस्ट रेट. अगर 11% या 12% इंटरेस्ट रेट है, आप मेंशन उसमें डाल दोगे 14%, तो वो तो 14% के हिसाब से कैलकुलेशन करेगा. तो दैट वी हैव टू चेक कि हाउ मच इज द इंटरेस्ट, सैंक्शन लेटर में कितना इंटरेस्ट है. और आप टेस्ट बेसिस पे चेक कर सकते हो कुछ अकाउंट्स को कि सैंक्शन लेटर में कितना इंटरेस्ट प्रोवाइड किया है. एंड आल्सो इन द बैंक सिस्टम कितना इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, दैट यू कैन डू इट. उसके लिए यू कैन आस्क द, आप उनसे बैंक से जो इंटरेस्ट रिलेटेड सर्कुलर है दैट यू कैन आस्क. आल्सो यू कैन आस्क द ऑडिट ट्रेल.
ऑडिट ट्रेल की कहाँ कहाँ मॉडिफिकेशन हुई है, बाई चांस उनमें बीच में मॉडिफिकेशन हुई है, दैट ऑल डिटेल विल कम। आप इसको फिनेकल से दिस कमांड इज देयर HLAMP, उससे भी आप चेक कर सकते हो, एंड यू कैन डू इट फ्रॉम द टेस्ट चेक बेसिस, एंड देन यू कैन गिव योर कमेंट कि इफ देयर आर वेरिएशन, तो देन यू कैन मेंशन द अकाउंट नंबर, अकाउंट नेम डिटेल। अगर नहीं है देन यू कैन मेंशन नो। देन इन नेक्स्ट केस, इसी का नेक्स्ट पार्ट है कि वेदर द इंटरेस्ट रेट इज रिन्यूड periodically reviewed periodically as per the guidelines applicable to the floating rate loans linked with the MCLR external benchmark lending rate। तो if अगर आपका फिक्स्ड है, तो हमने डिस्कस किया कोई फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, देन यू हैव टू चेक द सर्कुलर, जो कोई आरबीआई का सर्कुलर है या फिर बैंक की क्या पॉलिसी है, बैंक का सर्कुलर है, दैट यू कैन आस्क। एंड आल्सो यू कैन आस्क फॉर द ऑडिट ट्रेलिंग कि आपने कब कब मॉडिफाई किया इन द सिस्टम, यू कैन टेस्ट चेक इट। उसमें एक और एग्जांपल है, आप हाउसिंग लोन का चेक कर सकते हो, कुछ टेस्ट बेसिस पे आपको काफी वेरिएशन मिलेंगे, एंड देन यू कैन मेंशन इनटू द कमेंट बॉक्स कि क्या क्या आपके कमेंट्स हैं। देन इन क्रेडिट अप्रेजल, नेक्स्ट इज हैव यू कम अक्रॉस द फ्रीक्वेंट रिन्यूअल ऑफ द शॉर्ट टर्म लोन्स। तो फ्रीक्वेंट रिन्यूअल, अब तो आरबीआई का सर्कुलर आ गया इसके ऊपर, दिस सर्कुलर ऑन द अगस्त 21-22। अदरवाइज पहले क्या होता था ब्रांचेस में, दे डू द शॉर्ट टर्म एडहॉक रिन्यूअल, शॉर्ट टर्म रिन्यूअल। तो whenever you visit the branch, you should ask the bank manager or the loan manager, please provide the list of the pending renewal। आप उनसे पेंडिंग रिन्यूअल यू कैन आस्क द पेंडिंग रिन्यूअल, जो जो रिन्यूअल पेंडिंग है उसको चेक करिए, बिकॉज मोर देन 6 मंथ्स, अगर कोई 6 मंथ्स के अंदर आपका रिन्यूअल नहीं हुआ फ्रॉम द डेट ऑफ सैंक्शन, तो उसको आपको एनपीए भी क्लासीफाई करना है। एंड आल्सो यू कैन चेक इट कि कितने टाइम से रिव्यू या रिन्यू नहीं हुआ, या जिसके लिए आपको शॉर्ट टर्म उन्होंने रिन्यूअल करा है बैंक मैनेजर्स ने या फ्रॉम द एजीएम लेवल पे। तो यू हैव टू प्रोवाइड द डिटेल आल्सो, एंड इट शुड नॉट बी ऑन द फ्रीक्वेंट बेसिस, बिकॉज यू कैन चेक इट द सर्कुलर ऑफ द अगस्त 21-22 बेसिस। Then next is whether correct and valid credit rating। तो आई टोल्ड यू अर्लियर, हमें क्रेडिट रेटिंग के ऊपर भी कमेंट देना है कि आपने क्रेडिट रेटिंग ले ली फॉर द एलिजिबल बोरोवर्स, एंड आल्सो फ्रॉम द रजिस्टर्ड एक्रेडिटेड जो क्रेडिट एजेंसी है फ्रॉम द आरबीआई, और उसको करेक्टली फेड अप इन द फेड इट इनटू द सिस्टम आल्सो, वो भी हमने चेक करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चेक करना है, वी शुड आस्क फ्रॉम द बैंक कि व्हाट्स द बैंक पॉलिसी ऑन दिस, व्हाट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि किस किस बोरोवर्स के लिए क्रेडिट रेटिंग इज रिक्वायर्ड। बिकॉज यू नो, इफ योर क्रेडिट रेटिंग इज वेरी हाई, तो उस केस में आपका इंटरेस्ट रेट थोड़ा स्लैब कम होगा, इंटरेस्ट रेट विल बी लोअर, एंड बट इफ योर क्रेडिट रेटिंग इज पुअर, देन इंटरेस्ट रेट विल बी हाई। तो वो आपको चेक करना है। तो जो आरबीआई की क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, जो ऑथराइज क्रेडिट रेटिंग एक्रेडिट क्रेडिट एजेंसीज हैं, दीज आर द केयर, क्रिसिल, देन इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड, इकरा, brickwork rating India Limited, then acute rating and research limited, informatics valuation and rating private limited, these are the accredited from the RBI। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक पॉलिसी चेक करनी है कि कौन कौन से एलिजिबल बोरोअर्स हैं, उनकी रेटिंग, whether the bank have received or not, whether it's mentioned in the sanction letter, and also you can also check from the website of these कि आपने जो correctly जो rating है credit rating agency, and also you can check whether it's put a feed into the CBS itself, उसके लिए भी आप टेस्ट चेक कर सकते हो, एंड देन यू कैन गिव योर कमेंट कि वी हैव टेस्ट चेक दिस अकाउंट, तो ऐसी कोई क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैज फाउंड और नॉट फाउंड, वो आप मेंशन कर सकते हो। देन नेक्स्ट इज सैंक्शनिंग, सैंक्शन और द डिसबर्समेंट। उसके ऊपर क्या है क्वेश्चनर, सैंक्शन और डिसबर्समेंट। So in the case examined by you, have you come across any instances credit facility have been sanctioned beyond the delegated authority or limit fixed by the branches, or if the case are there, have it promptly reported to the higher authority? So सैंक्शन पावर, तो फर्स्ट आप जब भी जाएंगे तो यू कैन आस्क कि आपकी कितनी सैंक्शन पावर है इन केस ऑफ टर्म लोन, व्हीकल लोन या हाउसिंग लोन, सीसी के लिए आपकी कितनी लिमिट है। यू कैन आस्क इट फ्रॉम द बैंक मैनेजर, एंड आल्सो बैंक्स के मैनुअल, बैंक की क्रेडिट पॉलिसी जो सर्कुलर है, एंड यू कैन चेक इट आउट, एंड देन on test check basis you can check it out। And also remember,
जो लास्ट डेट्स को सैंक्शन हुए एडवांसेस उसको केयरफुली चेक करिएगा, इवन आइदर से हाउसिंग लोन और द व्हीकल लोन, तो उसमें वेदर इट्स आर इनटू द सैंक्शनिंग आर द विद इन द लिमिट ऑफ द डेलीगेटिंग अथॉरिटी या उससे ज़्यादा है, तो उसकी रिपोर्टिंग करी है या नहीं करी, दैट यू कैन चेक इट आउट। एंड देन इफ देयर आर सम डिस्क्रिपेंसी, तो यू कैन मेंशन into the comment box, these are the account, उसमें आपको अकाउंट नंबर देना है, अकाउंट नेम देना है, टाइप ऑफ फैसिलिटी एंड द सैंक्शन लिमिट और कब सैंक्शन किया, दैट यू हैव टू रिपोर्ट। एंड आल्सो जो सेकंड क्लोज है आपको उसके ऊपर भी कमेंट देना है, वेदर इट्स रिपोर्टेड टू द हायर अथॉरिटी, कब हायर अथॉरिटी को रिपोर्ट किया है, कोई एक्शन हुआ है नहीं हुआ, that also you can mention. Then next is whether advances has been dispersed without the complying with the terms and condition of the sanction letter. In our previous video I told you sanction letter is like a bible, तो जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस है इन द सैंक्शन लेटर, either before disbursement or the after disbursement, borrower had to follow it and we have to review and monitor कि वो टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हेयर यू कैन चेक इट जो उसका, एंड वो भी मैंने आपको बताया था कि सैंक्शन लेटर मस्ट चेक। कई लोग कहते हैं जी मिला नहीं, यू कैन आस्क फ्रॉम द बैंक कि आपको सैंक्शन लेटर की कॉपी प्रोवाइड की जाए, अदर से ऑफलाइन या ऑनलाइन, आप चेक करिए उसके अंदर क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। उसमें देर आर लोड्स ऑफ थिंग लाइक उसमें आपका मोर्गेज का है या फिर हाइपोथिकेशंस का है, कुछ और प्री डिसबर्समेंट में कोई इंस्पेक्शन रिपोर्ट चाहिए या कोई वेटिंग लीगल वेटिंग रिपोर्ट या सम प्रीवियस ड्यूज फ्रॉम द बैंकर्स हैं, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स हैं फ्रॉम द एग्जिस्टिंग बोरोवर। तो लोड्स ऑफ थिंग की टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो हुई है या नहीं हुई, एंड अगर नहीं हुई देन you can mention into the comment box कि these accounts are there, उसमें आप accounts number दीजिए, accounts name दीजिए, type of facility जो भी है आपकी sanction limit and sanctioning authority, and that you can mention it। And then did the bank provide loans to the company for buyback of share or security? So as per the RBI circular dated July 1, 2015, it's prohibited for the bank कि बैंक किसी कंपनी को बायबैक ऑफ सिक्योरिटी या शेयर्स के लिए लोन प्रोवाइड नहीं कर सकता। बट इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर आवर एंड कि हम उसको कैसे चेक करें। तो फर्स्ट थिंग यू कैन आस्क फ्रॉम द बैंक मैनेजर कि कोई ऐसा लोन तो नहीं है, या फिर यू कैन आल्सो टेक इट फ्रॉम द रिप्रेजेंटेशन लेटर कि कोई ऐसा लोन तो नहीं प्रोवाइड करता। माइट बी यू हैव टू सी द एंड यूज कि आपने लोन तो किसी और पर्पस के लिए दिए बट दे यूज्ड फॉर दिस पर्पस, तो उसकी भी पूरी डिटेल आपको चेक करनी है। इफ इट्स फॉर द करंट ईयर देन इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, बट इट्स फ्रॉम द पास्ट ईयर देन यू कैन चेक इट फ्रॉम द बैलेंस शीट कि उसमें कितनी बाईबैक्स हुई है, तो वेदर दिस इज फ्रॉम द लोन प्रोवाइडेड टू द कंपनीज उसके थ्रू करा है या नहीं करा, दैट यू कैन चेक इट आउट। एंड उसके बेसिस पे यू कैन गिव द कमेंट आल्सो, एंड आल्सो आप अपनी मेन ऑडिट रिपोर्ट में भी उसके ऊपर एडवर्स कमेंट कर सकते हो। देन डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, डॉक्यूमेंटेशन में इन केस if in the cases examined by you, have you come across instance of credit facility released by the branch without execution of the all the necessary documents? तो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स में एक तो आपको बैंक की पॉलिसी देखनी है कि क्रेडिट पॉलिसी के लिए आपने जो लोन सैंक्शन करा है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यू रिक्वायर्ड इट, एंड उसमें चेक करना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने रिसीव कर लिए हैं, एंड कस्टडी किसकी कस्टडीज में है, अगर किसी और ब्रांच में है देन यू कैन चेक। एंड आल्सो क्या होता है लास्ट ईयर्स जो ईयर एंड के ऊपर, ईयर एंड में जो लोन्स होते हैं चेक दैट वेरी केयरफुली, क्योंकि एडवांसेस लोन तो सेंक्शन हो जाता है बट डॉक्यूमेंट्स आते रहते हैं बाद में कि नहीं आप लोन तो ले लो, डॉक्यूमेंट्स आते रहेंगे। तो चेक इट आउट वेदर दीज डॉक्यूमेंट हैज बीन रिसीव्ड और नॉट। एंड आल्सो कई केसेस में आपको इवन वी हैव फाइंड द केसेस जिसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं, दैट कैन बी प्रोबेबल फ्रॉड्स कि आपके हाउसिंग लोन है या लैब है उसमें आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, तो माइट बी जो बोरोवर है उसने उसके बेसिस पे कहीं और से लोन ले लियो, तो दैट यू हैव टू चेक वेरी केयरफुली, उसको आपने चेक करना है डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। एंड इन केस सम डेविएशन इज देयर यू शुड कमेंट इनटू द कमेंट बॉक्स, उसमें जो आपको कमेंट्स देने हैं उसमें आपको अकाउंट्स नंबर, नेम ऑफ द बोरोवर, टाइप ऑफ फैसिलिटी, बैलेंस आउटस्टैंडिंग, नेचर ऑफ इरेगुलरिटी, डॉक्यूमेंट्स नॉट ऑब्टेन, दैट यू हैव टू मेंशन हियर।
Then deficiency in documentation, including non-registration of charges, non-obtaining of guarantee. If so, give the detail. So in one video, I told you कि at the time of audit, during the branch audit, you should ask the loan manager and the bank manager कि please provide us the pending detail, जितने pending renewals हैं, जितने pending आपके insurance हैं या pending registrations हैं या फिर जो guarantee वगैरह pending है उसकी पूरी डिटेल ले लीजिए. एंड ऑल्सो चेक द बैंक क्रेडिट पॉलिसी जो सैंक्शन लेटर्स में है डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर. एंड देन उसकी अकॉर्डिंगली इफ देयर आर सम डेफिशिएंसीज देयर दैट यू शुड मेंशन इट. एंड आल्सो चेक कि अगर कोई एग्रीमेंट है स्टैम्प पेपर के ऊपर अगर कोई एग्रीमेंट है तो स्टैम्प पेपर किसके नाम से है, बोरोर के नाम से है, बैंक के नाम से है या किसी गारंटर के नाम से है. इन फ्यू केसेस यू विल फाइंड इट आउट एट द नेम ऑफ गारंटर, दैट्स द रॉन्ग थिंग. एंड इन फ्यू केसेस यू विल आल्सो फाइंड इट आउट मोर देन 6 मंथ तो लैप्स हो गया उसके ऊपर. तो स्टैम्प पेपर का भी आपको चेक करना है कोई टाइम बार्ड तो नहीं है और कोई दीज ऑल डॉक्यूमेंट्स आर देयर नहीं है. तो देन मेंशन इनटू द कमेंट बॉक्स, उसमें आप कमेंट में मेंशन करिए अकाउंट नंबर, नेम ऑफ द बोरोवर, टाइप ऑफ फैसिलिटी, बैलेंस आउट एंड टाइप ऑफ irregularity. Then in documentation also, advances against lien of deposit. जो बैंक के पास एफडीआर है उसके बेसिस पे कोई इंटरेस्ट दिया है तो हम बैंक्स डू द लीन. वो हमने पहले डिस्कस किया था डिफरेंस बिटवीन लीन, हाइपोथिकेशन, मॉर्गेज. वो आप वीडियो में चेक कर सकते हो रिगार्डिंग द ऑडिट ऑफ एडवांसेस में. तो लीन में आपका नॉट ओनली यू हैव टू डू ऑन द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बट आल्सो इनटू द सीबीएस सिस्टम. तो सीबीएस सिस्टम में भी आपको मेंशन करना पड़ेगा लीन के ऊपर. तो इसके ऊपर आप बैंक की गाइडलाइंस चेक कर सकते हो, बैंक का जो पॉलिसी है हेड ऑफिस की उसके ऊपर चेक कर सकते हो. एंड आल्सो यू कैन फाइंड इट द डिटेल. तो उसके लिए फिनेकल में ये कमांड है ACSP, उसके बेसिस पे चेक कर सकते हो टेस्ट चेक बेसिस पे वेदर इट्स द मार्क द लीन ऑन द बैंक डिपॉजिट रिसिप्ट जो बैंक की जो ओरिजिनल डिपॉजिट रिपोर्ट्स है उसके ऊपर भी. एंड आल्सो ऑन द सीबीएस सिस्टम आल्सो. एंड अगर नहीं है इफ देयर आर सम डेविएशन यू कैन मेंशन इनटू द कमेंट्स दैट फॉलोइंग आर द केसेस जिसमें आपको अकाउंट नंबर, नेम ऑफ द बोरोवर, टाइप ऑफ द फैसिलिटी, बैलेंस आउटस्टैंडिंग एंड द पर्टिकुलर्स ऑफ सिक्योरिटी वो आपको मेंशन करनी है. देन नेक्स्ट इज आपका रिव्यू, मॉनिटरिंग एंड द सुपरविजन. either it's for the new loan or the old loan, आपको रिव्यू, मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन करनी है. आप अगेन आई एम सेइंग इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया है ऑडिट ऑफ एडवांसेस के ऊपर, यू कैन चेक इट आउट. सो रिव्यू, मॉनिटरिंग, सुपरविजन के ऊपर इज द प्रोसीजर लेड डाउन बाय द कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ द बैंक for the periodical review of the advances, including periodic balance confirmation, acknowledgement of debts, balance followed by the bank, provided analysis of the accounts overdue for review, renewal, what is your opinion. उसमें आपको बताना है 3 to 6 month, over to 6 month. तो उसमें first thing you can ask from the bank manager, प्लीज प्रोवाइड द बैंक गाइडलाइंस. इसके लिए जो आपके रिव्यू रिन्यूअल पॉलिसी के लिए क्या बैंक की गाइडलाइंस है उसमें जो आपके ओवरड्यूज है. यू कैन आल्सो आस्क द डिटेल जितने भी ओवरड्यूज अकाउंट है विच आर फॉर द पर्पस ऑफ द रिव्यू रिन्यूअल बेसिस, उसकी आप डिटेल एक फिनेकल से निकाल सकते हैं. फ्रॉम दिस इज द कमांड HLAROR. तो उसके बेसिस पे आप चेक कर सकते हो एंड डू द टेस्ट चेक. उसमें आप देख सकते हो कौन से डेट या मंथ में रिन्यू हुआ है या फिर अगर उसकी आपकी लिमिट्स है मोर देन 180 डेज है तो NP है, अगर उससे लेस है तो यू कैन मेंशन हियर आपका. एंड आल्सो more than 180 days है then also you have to do the MOC also. तो उसकी डिटेल ये नहीं है कि आपको यहाँ मेंशन कर देनी है, MOC नहीं ओपन करनी. रिमेंबर दिस आल्सो, अगर यहाँ पे कोई आप एडवर्स कमेंट दे रहे हो विच आर NPS तो आपको उसकी MOC भी ओपन करनी है. ये नहीं कि यहीं पे कमेंट कर दिया MOC नहीं ओपन करनी. नो, दैट यू हैव टू डू आल्सो. एंड देन इन अनदर केसेस of the review, monitoring, supervision are the stock, book debt statement, and other periodic operational data and financial statements received regularly from the borrower and duly scrutinized. Is suitable action taken on the basis of such security in appropriate cases. तो इसमें भी यू कैन चेक इट व्हाट्स द बैंक क्रेडिट पॉलिसी. सैंक्शन लेटर में क्या मेंशन है कि आपको जो इन केस ऑफ लार्ज बोरोवर यू कैन प्रोवाइड इट क्वार्टरली. जो आपकी स्टॉक स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी है क्वार्टरली प्रोवाइड करनी है. तो और जो स्टॉक स्टेटमेंट आप प्रोवाइड करोगे कैसे प्रोवाइड कर दोगे जो मंथली बेसिस पे है. तो आल्सो आस्क द बैंक मैनेजर कि आप जो पेंडिंग लिस्ट है, जो मैं अगेन एंड अगेन सेइंग दिस शुड यू शुड आस्क
जो भी पेंडिंग लिस्ट है, चाहे वो स्टॉक स्टेटमेंट की, रिन्यूअल की, आपकी आरओसी के ऊपर चार्ज नहीं है, या हाइपोथेकेशन, मोर्गेज, सरसाई में नहीं है, उसकी आप पेंडिंग लिस्ट, क्योंकि ये आपके हर जगह काम आएगी, तो यू कैन आस्क द पेंडिंग स्टॉक स्टेटमेंट रिपोर्ट। उसको आप फिनेकल में, अगेन आई एम सेइंग, सीबीएस इज नॉट फुल प्रूफ। अगर उसके अंदर मेंशन करा है इन सम ऑफ द केसेस, कई केसेस में ये है, सीबीएस में तो मेंशन है कि स्टॉक स्टेटमेंट रिसीव्ड होगी, बट रियल में वो स्टॉक स्टेटमेंट है ही नहीं। बट यस, यू कैन टेक द स्टेटमेंट। उसमें ये आपकी कमांड है STK STMT, फिनेकल से आप कमांड, उसमें से आप पेंडिंग स्टॉक स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, कौन कौन से केसेस में, बोरोवर्स के केसेस में पेंडिंग है, एंड देन यू कैन चेक इट from the actual files कि whether that has been received or not, and also जो उन्होंने कहा है कि whether there are some classification analysis of the large borrower। तो लार्ज बोरोवर के केसेस में आपको चेक करना है कि जो आपकी एज वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ द बुक डेट्स आर द स्टॉक, एंड देन क्रेडिटर्स जो आपके अनपोर्ड स्टॉक, अनपेड के स्टॉक के हैं, मार्जिन, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक जो है एज पर द आईसीआई नॉर्म्स जो आईसीआईसी ने मेंशन कर रखा है, एंड देन आफ्टर डूइंग दिस ऑडिट प्रोसीजर यू कैन मेंशन इनटू द कमेंट्स, जो आपके कमेंट्स हैं उसमें मेंशन कर सकते हो कौन कौन से अकाउंट्स हैं, और इफ देयर आर नो अकाउंट्स यू कैन मेंशन इट, देयर आर नो अकाउंट्स, एंड देन दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, डीपी कैलकुलेशन, वेदर द डीपी इज प्रॉपर्ली कंप्यूटेड और नॉट। तो डीपी के लिए आपको सीसी फैसिलिटी में जितने भी केसेस हैं, सीसी या ओडी के लिए मैक्सिमम केसेस में यू विल फाइंड सम डिस्क्रिपेंसीज देयर। तो फर्स्ट थिंग यू शुड आस्क द बैंक that what's the bank policy for the DP calculation, and also check the sanction letter। उसमें भी क्लियरली मेंशन होगा। अब कई लोग कहते हैं जी सर वो वाला बैंक तो क्रेडिटर्स को रिड्यूस ही नहीं करते, वो बैंक मार्जिन नहीं लेता। डोंट डू लाइक दैट, डोंट डू लाइक दैट। आप बैंक की पॉलिसी चेक करिए, बैंक की पॉलिसी क्या करती है, या सैंक्शन लेटर में क्या है, सिर्फ बुक डेट्स के ऊपर आपको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करी है, या आपके किसके बेसिस पे आपको क्रेडिट फैसिलिटी पड़ेगी। जो एक नॉर्मल क्राइटेरिया रिगार्डिंग द डीपी कैलकुलेशन, उसमें क्या है, स्टॉक, आपका जो भी स्टॉक है रियलाइजेबल वैल्यू लेस अनपेड स्टॉक, जो आपके अनपेड स्टॉक है, क्रेडिटर्स, एक्सेप्टेंस, एलसी, बायर्स क्रेडिट, एंड एड एलिजिबल डेटर्स। एलिजिबल डेटर्स में भी इट्स डिपेंड डिफरेंट टू डिफरेंट बैंक वाइज कि आप 90 डेज का ले रहे हैं या 180 डेज का ले रहे हैं या 120 डेज का ले रहे हैं, दैट आल्सो डिपेंड बैंक्स टू बैंक। देन आल्सो लेस द मार्जिन, different margin, it can be for stock or the for debtors, 40% है या 60% है, वो margin you can reduce, and then you can check the audit trail। जो डीपी के लिए है आप चेक कर सकते हो कि आपने जो आप आयरेक नॉर्म्स का, हाँ, उसमें आप चेक कर सकते हो वीडियो कि आपकी लार्ज बोरोवर के लिए जो डीपी कैलकुलेशन है 3 मंथ से ओल्डर नहीं होनी चाहिए, एंड इट्स आल्सो वैलिड फॉर द प्लस 90 डेज। तो आपको आल्सो यू हैव टू चेक उसमें सीबीएस में करेक्टली फिट इट आर नॉट, एंड देन अगर नहीं है तो आप ऑडिट कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो, बोरोवर की डिटेल दे सकते हो कि इस केसेस में डीपी इज नॉट करेक्टली मेंशन, एंड आल्सो अगर ड्यू टू दिस कोई अकाउंट्स एनपीए हो जाता है, देन यू हैव टू गो फॉर द एमओसी। आपको एमओसी भी देनी है वहां पे, एंड कमेंट बॉक्स में लिखना भी है एज पर आवर एमओसी सो एंड सो, उसमें अकाउंट्स डिटेल आप मेंशन कर सकते हो। एंड देन latest audited financial statements are obtained for the accounts review renewed during the year। तो उसमें यू कैन आस्क फ्रॉम द बैंक कि आप डिटेल प्रोवाइड करिए कि जो उनकी लेटेस्ट ऑडिटेड मिली है या नहीं मिली, नहीं मिली तो क्या रीजंस है, एंड आल्सो मेंशन इनटू द कमेंट बॉक्स। एंड देन इन रिव्यू मॉनिटरिंग सुपरविजन, whether there exists a system to obtaining reports on stock audit periodically, if so whether the branch has complied with such system। तो उसमें क्या है, आपको बैंक की हेड ऑफिस की जो गाइडलाइंस, बैंक की जो पॉलिसी है रिगार्डिंग दिस, दैट यू हैव टू चेक, एंड आल्सो आपको चेक करना है कि वेदर बैंक्स आर कंप्लाई, उसको कंप्लाई भी कर रहा है या नहीं कर रहा, कि लाइक कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि आपको रिमाइंडर शुड बी देयर कि इसका स्टॉक स्टेटमेंट नहीं आई फ्रॉम इसका दिस ड्यू डेट्स इज देयर, आपकी स्टॉक स्टेटमेंट नहीं आ रही, 1 मंथ से नहीं आ रही, 2 मंथ से नहीं आ रही, तो दैट इज देयर। तो आपको वो पूरी डिटेल बैंक मैनेजर से यू शुड आस्क, and then next is detail of cases where stock audit were required but not conducted, whether stock audit were conducted but no action was taken on adverse feature। तो इस केसेस में भी
आप बैंक की पॉलिसी चेक कर सकते हो, बिकॉज अर्लियर इट वाज बाय द आरबीआई ने मेंशन करी थी सम लिमिट, नाउ इट्स रिड्यूस, नाउ इट्स ड्यू टू द बैंक। बैंक को चेक करना है कि किस लिमिट तक दे हैव टू डू फॉर द स्टॉक ऑडिट। आप बैंक की पॉलिसी चेक कर सकते हो कि किस किस के बोरोवर्स के अकाउंट स्टॉक ऑडिट इज कंपल्सरी। तो आप बैंक मैनेजर से यू कैन आस्क द लिस्ट जिनके अकाउंट स्टॉक ऑडिट हुए हैं, एंड आल्सो जो स्टॉक ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट में मेंशन करे हैं रिगार्डिंग द डिस्क्रिपेंसी, तो उसके ऊपर कोई एक्शन हुआ है या नहीं हुआ, दैट आल्सो यू कैन चेक इट आउट एंड कैन मेंशन इनटू द कमेंट बॉक्स। उसमें आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। देन नेक्स्ट इज indicate the cases of advances to non-corporate entities with limit beyond that is set by the bank where the branch was not obtained the duly audited accounts. So in this case also आरबीआई की सम लिमिट वाज देयर, वो उन्होंने रिमूव कर दी है। नाउ इट्स एज पर द बैंक पॉलिसी, बैंक हैव टू डिसाइड कि कितने अमाउंट तक अगर लोन प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेने हैं फॉर द नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी। कॉर्पोरेट में तो ऑब्वियसली बात है आपको मिल ही जाएंगे, और नॉन फाइनेंशियल में बैंक हैव टू डिसाइड, बैंक की पॉलिसी यू हैव टू चेक इट आउट, एंड देन यू हैव टू सी कि वेदर ब्रांच आर फॉलोइंग दैट पॉलिसी आर नॉट। तो वो ऑडिटेड फाइनेंशियल मंगवा भी रहे हैं या नहीं मंगवा रहे, एंड देन यू कैन चेक इट फ्रॉम द फिनेकल। उसमें एक रिपोर्ट है एसीएसपी, उसके बेसिस पे आप चेक कर सकते हो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड आल्सो अगर आपको कोई ऑडिटेड फाइनेंशियल अकाउंट्स मिलते हैं किसी अकाउंट्स के, देन यू कैन चेक इट वेदर द यूडीआईएन इज मेंशन आर नॉट। यूडीआईएन को आप टेस्ट चेक बेसिस पे आईसीआई की वेबसाइट से वेरीफाई कर सकते हो वेदर दिस अकाउंट बाई दिस वन ऑडिटेड बाई किस चार्टर्ड अकाउंटेंट ने वेरीफाई करे हैं दिस अकाउंट, उसको ऑडिट किया है। तो that also you can check it from the ICI website, or if in case there are some discrepancy, then you can mention into the comment box. Then next is, this is also into the review monitoring supervision. Does the branch have its record a due diligence report in the form and manner required by the RBI in case of consortium and multiple banking arrangement? तो कंसोर्टियम एंड मल्टीपल बैंकिंग अरेंजमेंट है, उस केसेस में RBI had issued a circular on dated September 19, 2008. तो बैंक्स को, जो भी कंसोर्टियम के पार्ट हैं बैंक्स, दे हैव टू रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन ए सर्टिफिकेट। वो सर्टिफिकेट उसका प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है, इट्स डिजाइन बाय द आरबीआई। वो आपको एक फॉर्मेट लेना पड़ता है, फॉर्म साइन बाय द either it's by the chartered accountant, company secretary or the CMA। तो उसमें दे विल मेंशन कि ये कंप्लायंस इज कंप्लीट हो रही है जो स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शन है। तो ऑडिटर हैज टू चेक। आप बैंक मैनेजर से डिटेल मांग सकते हो कि वेदर इज देयर एनी कंसोर्टियम एडवांसेस जो आप उसके पार्ट हैं, एंड इफ द आपको आल्सो चेक करना है कि वेदर बैंक जो आपकी ब्रांच है, बैंक इटसेल्फ कोई लीड बैंक तो नहीं है। अगर लीड बैंक है तो then also in that case copy of certificate report should be obtained from lead bank for review and record। अगर लीड बैंक दूसरे हैं तो उसमें रिकॉर्ड मेंशन करने पड़ेंगे, एंड we as the auditor has to report whether these certificate has been obtained or not। नहीं obtained किया, then you can mention into the comment box। then inspection or physical verification of securities, तो वी हैव टू आल्सो प्रोवाइड द कमेंट्स हियर कि जो आपकी सिक्योरिटीज है उसका फिजिकल वेरिफिकेशन और द इंस्पेक्शन ब्रांच आर डूइंग एज पर द प्रिस्क्राइब जो प्रोसीजर है laid by the controlling authority। So whether there is substantial deterioration in the value of security during financial year as per latest valuation report in comparison with the earlier value report on the record। तो इस केस में यू शुड आस्क द बैंक पॉलिसी, जो आपकी एचओ की पॉलिसी है, क्या गाइडलाइंस है रिगार्डिंग द फिजिकल वेरिफिकेशन या द इंस्पेक्शन का। और आल्सो यू शुड आस्क द वैल्यूएशन रिपोर्ट, उसकी वैल्यूएशन रिपोर्ट जो लास्ट वैल्यूएशन रिपोर्ट थी या उससे पहले वैल्यूएशन रिपोर्ट थी, यू शुड चेक इट डाउन। उसके जो फिजिकल जो लिस्ट है उसमें ओवरड्यूज के लिए बैंक की पॉलिसी है कि इन दैट केस या इन दिस ईयर 1 year या 2 year दिस inspection or physical verification is there। if there are some overdues तो आप बैंक मैनेजर से आस्क कर सकते हो। एंड रिगार्डिंग दिस सब्सटेंशियल डिटोरिएशन में इन्होंने मेंशन नहीं किया 10%, 20%, 30% क्या है, दैट्स नॉट क्लैरिफाइड। तो आप टेस्ट चेक इसमें कर सकते हो, आप सीसी लिमिट का चेक कर सकते हो,
व्हीकल लोन का चेक कर सकते हो, हाउसिंग लोन फॉर कंस्ट्रक्शन का चेक कर सकते हो। एंड इफ देयर आर सम डिस्क्रिपेंसी, आप मेंशन कर सकते हो उसका अकाउंट नंबर, नेम ऑफ बोरोवर, टाइप ऑफ फैसिलिटी, सैंक्शन लिमिट, लास्ट डेट ऑफ इंस्पेक्शन और फिजिकल वेरिफिकेशन, किस डेट को लास्ट हुआ है, दैट you have to mention in the comment box. Then in next case, in respect of advances examined by you, have you come across cases of deficiency, including in value of securities and inspection thereof, or any other adverse features such as frequent unauthorized overdrawing beyond limit, inadequate insurance coverage? तो इस केस में भी you have to mention कि कौन कौन से अकाउंट्स हैं, उनकी डिटेल। तो इसके लिए यू कैन आस्क द बैंक पॉलिसी। उसके बाद आपको चेक करना है वेदर दीज सिक्योरिटीज आर चेक्ड ऑन द रेगुलर इंटरवल और नॉट, उनकी फिजिकल वेरिफिकेशन, इंस्पेक्शन, या फिर कुछ एडवर्स फीचर्स हैं। जो अकाउंट हमने एडवांसेस वगैरह चेक करे हैं उसमें कुछ एडवर्स फीचर्स हैं, लाइक इनएडिक्वेट इंश्योरेंस ही नहीं है उसका, या फिर ओवरड्रॉन है इनटू द बियॉन्ड लिमिट सीसी में। अगर बहुत ज्यादा है देन आल्सो यू हैव टू चेक आयरेक्ट नॉर्म्स, कोई एनपीए तो नहीं है, एनपीए तो एमओसी बना के यहाँ पे मेंशन करना है। सो इन दिस ऑडिट प्रोसीजर यू कैन चेक द सीसी लिमिट, व्हीकल लोन, हाउसिंग लोन फॉर कंस्ट्रक्शन, एंड देन provide the detail into the comment box, account number, name of the borrower, type of facility, sanction limit, last date of inspection or physical verification. Then next is whether the branch has any red flagged account. तो रेड फ्लैग की भी आपको डिटेल प्रोवाइड करनी है कि ब्रांच का कोई रेड फ्लैग अकाउंट है, एंड आल्सो whether there are any deviation, whether there are any deviation was observed related to compliance of bank's policy feature with the red flag account. तो सबसे पहले तो आपको बैंक की पॉलिसी चेक करनी है। बैंक की पॉलिसी से पहले एक आरबीआई ने सर्कुलर इश्यू किया था जुलाई 2017 को रिगार्डिंग द फ्रॉड्स क्लासिफिकेशन एंड रिपोर्टिंग बाय द कमर्शियल बैंक्स एंड सिलेक्टेड एफआईएस। तो उसमें दे हैड मेंशन सम अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, ईडब्ल्यूएस मेंशन करे थे दीज सिग्नल्स, इफ दीज सिग्नल्स आर देयर इन सम ब्रांचेस, तो दीज आर द रेड फ्लैग अकाउंट। तो ब्रांच को रेड फ्लैग अकाउंट्स करना पड़ेगा, एंड आल्सो दिस इज लाइक ए अर्ली वार्निंग सिग्नल कि दिस अकाउंट कैन बी द प्रोबेबल एनपीए। एंड आरबीआई आल्सो सेड कि ब्रांच कैन आल्सो ऐड, जो उन्होंने मेंशन करने थे सिग्नल, दे आर आल्सो सेड कि ब्रांच कैन आल्सो डू इट एट देयर ओन। तो यू शुड आस्क द बैंक पॉलिसी एंड आल्सो चेक कि वेदर ब्रांच ने कोई रेड फ्लैग अकाउंट मेंशन किया है। तो आप बैंक मैनेजर से यू शुड आस्क कि वेदर इज देयर आर एनी रेड फ्लैग अकाउंट, या फिर उन्होंने कुछ रेड फ्लैग अकाउंट मेंशन किए, वेदर दे आर डेविएटेड फ्रॉम द आरबीआई या द बैंक पॉलिसी, बैंक पॉलिसी वो डेविएट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। और इफ इन योर ओपिनियन कि बैंक ने कोई रेड फ्लैग अकाउंट नहीं मेंशन करा बट दैट अकाउंट आर द रेड फ्लैग अकाउंट, देन आल्सो यू कैन मेंशन देयर इन द कमेंट बॉक्स कुछ अकाउंट है या नहीं अकाउंट है। देन दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक तो हम डिस्कस कर रहे थे कि कुछ डेविएशंस हैं, इश्यूज हैं, एनपीए अकाउंट्स हैं, प्रोबेबल एनपीएस अकाउंट है, बट हियर they are asking the adverse feature for top 5 standard large account, कि आपके अकाउंट तो स्टैंडर्ड्स हैं बट आपको उसके ऊपर एडवर्स फीचर्स देने हैं विच नीड मैनेजमेंट अटेंशन। तो दैट्स व्हाई आई सेड यू वी हैव टू प्रोवाइड द कंप्लीट डिटेल, अच्छे से ऑडिट चेक करना पड़ेगा तभी वी कैन गिव द कमेंट्स। तो जो 5 टॉप अकाउंट है आपके स्टैंडर्ड लार्ज अकाउंट, उसमें आपको देने हैं कोई एडवर्स कमेंट्स कि वेदर अकाउंट्स आर ऑपरेटिंग नॉर्मली, या इनहेरेंट वीकनेस आर देयर, या कुछ केसेस में आपकी स्टॉक स्टेटमेंट नहीं आ रही, कुछ अकाउंट्स के केसेस में जो भी आपको एडवर्स फीचर लग रहा है उस अकाउंट्स के अंदर, दैट यू हैव टू मेंशन देयर। यू कैन आस्क द बैंक मैनेजर कि आप डिटेल प्रोवाइड करिए जो आपने अपनी कंट्रोलिंग अथॉरिटी को भेजी है आपने, बिकॉज बैंक आल्सो हैव टू रिपोर्ट टू द कंट्रोलिंग अथॉरिटी। ऑन दैट बेसिस यू कैन चेक इट आउट कि कौन से एडवर्स फीचर है, एंड देन यू शुड मेंशन कि आपको टॉप 5 अकाउंट्स की डिटेल देनी है, उनका नेम, अकाउंट नंबर, क्या क्या एडवर्स कमेंट्स है उसके अंदर, दैट यू हैव टू मेंशन। देन नेक्स्ट इज इन केस ऑफ लीजिंग फाइनेंस एक्टिविटीज, उसके ऊपर आपको चेक करना है वेदर दिस इज अकॉर्डिंगली कि ब्रांच उसको कंपाइल कर रही है जो आपकी हेड ऑफिस की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंगली, एंड द ब्रांच compiled with the accounting norms prescribed by the controlling authority
of the bank related to such leasing activity. तो लीजिंग एक्टिविटीज के केसेस में फर्स्ट वी शुड आस्क द बैंक मैनेजर कि बैंक से हमें आपकी जो क्या गाइडलाइंस है रिगार्डिंग द लीजिंग एंड द फाइनेंस एक्टिविटीज के ऊपर क्या गाइडलाइंस है। इवन इसके ऊपर आरबीआई ने एक सर्कुलर भी इशू करा है, मास्टर सर्कुलर डेटेड 1 जुलाई 2015 पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज के ऊपर। एंड आल्सो वी शुड आस्क द बैंक्स की अकाउंटिंग नॉर्म्स है एंड बैंक जो ब्रांच है दैट आर फॉलोइंग and in according with the HO guidelines, and also we should check the accounting standard 19 जो है related to lease, उसको भी check करना है as issued by the ICI, and then we should give the comments. And then next is related to assets classification, provisioning of advances and resolution of stress assets. तो ये जो IRAC norms के ऊपर है, तो इसके ऊपर आप कमेंट तभी कर सकते हो व्हेन यू हैव नॉलेज ऑफ द आईरेक नॉर्म्स। तो आईरेक नॉर्म्स के ऊपर हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है आईरेक नॉर्म्स पे, दैट कैन यू कैन आल्सो चेक इट आउट। अदरवाइज उसके ऊपर 1 जुलाई 2015 का मास्टर सर्कुलर है। दिस ईयर आल्सो 3 सर्कुलर इशूड बाय द आरबीआई, 1 मास्टर सर्कुलर इज देयर, 2 क्लैरिफिकेशन इज देयर, आप वो चेक कर सकते हो। तो इसमें आपको देनी है डिटेल, हैज द ब्रांच आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई एडवांसेस इनटू स्टैंडर्ड, सबस्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस एसेट्स थ्रू द कंप्यूटर सिस्टम विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आरबीआई ने एक सर्कुलर भी इशू किया था 14 सितंबर, दिस वाज आई थिंक 2020, 14 सितंबर 2020, ये डेट मेंशन गलत मेंशन है। तो उसमें आरबीआई सेड अबाउट द ऑटोमेशन, तो प्लीज टेक इट 2020, 14 सितंबर 2020। तो उसमें आरबीआई सेड कि जितने भी आपके एनपीएस है that should be through the automation of the CBS system. It should not be through the manual intervention. तो उसके ऊपर आरबीआई ने डेट भी करा था कि आप 30 जून 2021 तक देयर शुड बी दैट प्रोसीजर की ऑटोमेशन थ्रू द सीबीएस सिस्टम। तो एज ए ऑडिटर वी शुड वेरीफाई, हमें वेरीफाई करना है कि जो बैंक, सबसे पहले तो यू शुड आस्क द एनपीए लिस्ट, देन आपको हमेशा मैनेजर क्या कहेगा, सर दिस इज फ्रॉम द सीबीएस सिस्टम। बट इट्स नॉट पॉसिबल कि सारे एनपीए आप आपके सीबीएस सिस्टम के थ्रू आ जाए, बिकॉज मैनी टाइम्स सॉफ्टवेयर सीबीएस सिस्टम इज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द एनपीए। काफी सारे क्राइटेरिया है। फॉर एग्जांपल आपके कैश क्रेडिट में वो डेट जो आपके 90 डेज है, या उसमें कुछ और क्राइटेरिया, अगर आपका मास्टर में ही कुछ डिफरेंसेस हैं तो उसके बेसिस पे भी आपका एनपीए करेक्टली क्लैरिफाई नहीं हो सकता। मैनी मैनी अदर केसेस आते हैं, जैसे रिन्यूअल के केसेस में, पेंडिंग रिन्यूअल के केसेस में, तो वेदर दे हैड मेंशन, या स्टॉक स्टेटमेंट में वो मेंशन तो कर देते हैं स्टॉक स्टेटमेंट रिसीव्ड होगी, बट आया या नहीं आया, तो आपने चेक करना है कि मैनुअल इंटरवेंशन है या नहीं है। ओबीसी बात है, आपको मिलेगी मैनुअल इंटरवेंशन, तो यू शुड मेंशन इन द कमेंट बॉक्स कि कौन कौन से अकाउंट्स हैं। आल्सो यू कैन मेंशन, अगर कोई आपने एमओसी उसके ऊपर इशू करी है तो एमओसी की डिटेल यू कैन मेंशन इट आल्सो देयर, एंड आल्सो यू कैन मेंशन दैट ऑडिट ट्रेल वेदर यू हैव रिसीव्ड और नॉट, उसके जो ऑडिट लॉग नहीं मिली और उसके बेसिस पे वी आर अनेबल टू डू इट, कि आप विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेशन ऑफ सीबीएस सिस्टम कर रहे हैं या मैनुअल इंटरवेंशन है, दैट यू कैन आस्क फॉर दैट and also can mention in the comment box. And then next is the identification and classification in line with the norms prescribed by the RBI. तो सबसे पहले तो आरबीआई का सर्कुलर आपको चेक करना पड़ेगा रिलेटिव टू द आरबीआई नॉर्म्स। देन आपको चेक करना है जो आइडेंटिफिकेशन है, जो एनपीए क्लासिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन है, दैट्स इन अकॉर्डिंग टू द आरबीआई। तो उसके ऊपर भी कोई अगर हमने एमओसी इशू कर रहा है, इसमें कोई डेविएशन है, दैट यू शुड मेंशन हियर। और रिमेंबर दैट थिंग, इफ देयर आर सम डेविएशन, आप कमेंट बॉक्स में लिख देते हो और उसकी एमओसी नहीं इशू कर रहे, देन देयर वुड बी प्रॉब्लम। जो वहां पे इट्स इन अकॉर्डेंस विद आईरेक नॉर्म्स नहीं है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अदरवाइज मस्ट डू इट इनटू द कमेंट्स बॉक्स। Then next is whether the branch is following the system of classifying the account into SMA 0, SMA 1 and SMA 2, whether the auditor disagree with the branch classification of the advances into SMA 0, SMA 2, SMA 1, SMA 2, standard, substandard, doubtful losses, and the detail of such advances with reason should be given. इसके ऊपर भी पूरा हमने डिटेल में डिस्कशन किया था कि SMA 0 अकाउंट कौन से है, आपके जो 1 to 30 डेज, SMA 1 अकाउंट 31 to 60 डेज ओवरड्यूज है, 61 to 90 इट्स द SMA 2 अकाउंट्स। इसके ऊपर भी आरबीआई ने 12 नवंबर
2021 को क्लैरिफिकेशन दिया, जिसमें उन्होंने मेंशन किया कि SMA 0, 1, 2 कैसे आपको ट्रीट करने हैं आफ्टर द डे एंड प्रोसेस। जब आपका रनिंग ऑफ डे एंड प्रोसेस है उसके बेसिस पे, ये भी आप पीछे प्रीवियस वीडियो में चेक कर सकते हो। तो आपको चेक करना है वेदर द ब्रांच आर फॉलोइंग दैट सिस्टम आर नॉट, जो आरबीआई की गाइडलाइंस है, जो आरबीआई की क्लैरिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंगली कर रही है या नहीं कर रही। अगर नहीं फॉलो कर रही, देन एमओसी आपने जो प्रोवाइड करनी है और किस बेसिस पे प्रोवाइड करनी है, एंड आल्सो यू शुड मेंशन इनटू द कमेंट बॉक्स। एंड देन नेक्स्ट they are asking also indicate whether required changes have been incorporated suggested in the MOC itself। तो यहाँ पे भी आपको मेंशन करना है जो आपके एचओ की गाइडलाइंस है वो फॉलो हो रही है, एंड वेदर इट्स विद इनकंसिस्टेंट विद द आरबीआई सर्कुलर, आरबीआई क्लैरिफिकेशन नहीं हो रहा, तो आपने एमओसी जो इशू करी है उसको आपने डिटेल में मेंशन करना है। Then next they are asking the list the accounts where outstanding in excess of 10 crore। तो कोई अकाउंट्स हैं जिसकी आउटस्टैंडिंग मोर देन 10 करोड़ रुपीज है, विच हैड बीन आइदर डाउनग्रेड और अपग्रेड with regard to their classification as NPA or standard assets during the year and the reason thereof। तो उसकी डिटेल आपको मेंशन करनी है कि अगर कोई 10 करोड़ से अबोव अकाउंट है, दिस इज ओनली फॉर द 10 करोड़ एंड अबोव, तो वो कोई अकाउंट अगर इट्स गोज टू, अगर वो एनपीए है, आपको डिटेल मेंशन उनसे डिटेल लेनी है कि कौन कौन से अकाउंट डाउनग्रेड या अपग्रेड कर रहे हैं। एंड आल्सो यू कैन कंपेयर लास्ट ईयर जो डिटेल्स है उनकी एनपीएस की फ्रॉम दिस ईयर, कोई सब स्टैंडर्ड में था तो अब उसको दूसरे में ऑटोमेटिक लाए, उसकी डिटेल नहीं डालनी की, जैसे सब स्टैंडर्ड से डाउटफुल D1 से D2 अपने अदरवाइज कोई मेंशन करी है तो मोर देन 10 करोड़ की, तो उसकी डिटेल एंड द रीजन देयर ऑफ को मेंशन करने हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, विद सीरियल नंबर, नेम ऑफ बोरवर, अकाउंट नंबर, अमाउंट क्लासिफिकेशन एंड द क्लासिफिकेशन एज ऑन 31 मार्च, जो लास्ट ईयर था क्या था उसका रिमार्क्स क्या है। देन वेदर आरबीआई गाइडलाइंस what income recognition and provisioning has been following, जो इनकम रिकग्निशन नॉर्म्स है एज पर आईरेक नॉर्म्स, वेदर बैंक आर फॉलोइंग फॉर दिस अकाउंट आर नॉट, उसके लिए आपको मेंशन करना है। और नहीं अगर फॉलो हो रहे, देन वेदर यू हैव इशूड द एमओसी, तो एमओसी की आपको डिटेल प्रोवाइड करनी है। इन नेक्स्ट केस, वेदर द ब्रांच हैज रिपोर्टेड अकाउंट restructured or refaced during the year to the controlling authority of the bank। Then next, whether the RBI guideline for restructuring of all cases has been followed, whether the branch complies with the regulatory stance for resolution of stress assets, including the compliance with the board-approved policy in this regard, tracking, reporting of defaults for the resolution purpose, among others। तो सबसे पहले तो आपके जो रिगार्डिंग द रिस्ट्रक्चरिंग नॉर्म्स है, अभी आरबीआई की क्लैरिफिकेशन भी आई थी रिगार्डिंग द रिस्ट्रक्चर्ड अकाउंट, तो उसके ऊपर आपकी डिफरेंट डिफरेंट आपकी गाइडलाइंस है रिगार्डिंग द रिस्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल एमएसएमई रिस्ट्रक्चरिंग, या फिर आपकी एग्रीकल्चर लोन है उसकी रिस्ट्रक्चरिंग, या फिर लार्ज एडवांसेस की रिस्ट्रक्चरिंग, दैट यू हैव टू फॉलो। आल्सो यू शुड चेक द गाइडलाइंस इशूड बाय द हेड ऑफिस, तो उसको आपने वेरीफाई करना है, एंड एक कमांड से उसको आप डिटेल चेक कर सकते हो। जो अकाउंट रिस्ट्रक्चर ड्यूरिंग या रीफेस ड्यूरिंग द ईयर है, HLARA in the FINACL itself, and on that basis you can check and then mention into the comment box। And then next is whether the upgradation in non-performing advances is in line with the norms of the RBI। And then another in this case also, where the auditor disagrees with the upgradation of account, if yes, give the reason। तो अपग्रेडेशन में आपको चेक करना है व्हाट्स द आरबीआई गाइडलाइंस। तो आरबीआई ने इस बार क्लैरिफिकेशन भी इशू करी है कि अगर कोई आपका एनपी अकाउंट आप उसको अपग्रेड कर रहे हो, तो जितने भी ओवरड्यूज है, नॉट ओनली इन दैट अकाउंट बट इन अदर फैसिलिटी आल्सो, दैट शुड बी रिकवर्ड बाय द बैंक बिफोर इट्स गोइंग टू द अपग्रेड इनटू द स्टैंडर्ड एसेट्स। तो वो आपको चेक करनी है कि वेदर दैट हैज बीन फॉलोड और नॉट, और अगर नहीं फॉलो हो रही, व्हाट्स द डेविएशन। अगर इश्यूज है बैंक ने नहीं करा, तो इश्यू द बैंक एमओसी आप उसके इशू करिए। एंड आल्सो जो लास्ट 2 इयर्स के आपके एनपीएस अकाउंट है उसको चेक करिए कि वो जो अकाउंट था लास्ट ईयर, तो इस ईयर क्यों नहीं आ रहा उस लिस्ट के अंदर, तो क्या रीजन है, वेदर इट्स अपग्रेडेड और नॉट, उसकी पूरी डिटेल आपको मेंशन करनी है। Then have you come across cases where the relevant controlling authority of the bank has authorized legal action for recovery of advances or recalling of advances, but no such action has been taken? तो इसमें रिकवरी पॉलिसी है बैंक की,
you should ask the recovery policy of the head office जो इशू करते हैं ब्रांच को, एंड देन यू हैव टू सी कि ब्रांच उस गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही. आप उसको मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर के अंदर आप मेंशन कर सकते हो, एंड यू कैन टेक इट फ्रॉम द बैंक मैनेजर कि क्या क्या लीगल प्रोसीडिंग या लीगल इनिशिएटिव रिगार्डिंग द रिकवरी प्रोसीडिंग्स हैं, और अगर नहीं हुई तो क्या रीजन है उसके ऊपर, और किन किन के अकाउंट्स हैं उसकी डिटेल आप मेंशन करिए रिगार्डिंग द सीरियल नंबर, नेम ऑफ द बोरोवर, अकाउंट नंबर, सैंक्शन लिमिट, instruction to take legal action on present status. And then in next case, whether there are any accounts wherein process under IBC, insolvency and bankruptcy code, is mandated but not initiated by the branch. And then they are asking whether there are any borrower at the branch against whom the process of IBC is initiated by any of the creditors, including bank. If yes, provide the list of such accounts and comment on the adequacy of provision made thereon. तो मोस्टली रिगार्डिंग द आईबीसी केसेस, दैट्स डेल्ट बाय द जो आपका इनका हेड ऑफिस लेवल पे है, या फिर कोई स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट है लाइक द स्ट्रेस एसेट्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट. तो फर्स्ट यू शुड आस्क द मैनेजर, जो बैंक है बैंक मैनेजर से यू शुड आस्क इज देयर एनी केसेस रिगार्डिंग द आईबीसी. अगर है तो यू कैन टेक द लिस्ट. उसके बाद वो लिस्ट ले हुए यू कैन चेक इट आउट, और उनकी जो प्रोविजनिंग है और जो उनकी क्लासिफिकेशन है दैट्स इन अकॉर्डेंस विद द आईएक नॉर्म्स. तो उसके अकॉर्डिंग है. कोई अगर कोई आपका कोई बैंक के अंदर कोई बोरोवर है उसके भी अगेंस्ट है, देन यू कैन आस्क द डिटेल फ्रॉम दैट. उसको आप गूगल से भी चेक कर सकते हो इफ सम प्रोबेबल केसेस आर देयर. कोई बड़ा केस है आपके पास वाइल दैट्स इनटू द एनसीएलटी की वेबसाइट से आप चेक कर सकते हो, या गूगल से भी आप चेक कर सकते हो, एंड देन यू कैन मेंशन इट फ्रॉम द कमेंट बॉक्स की कौन कौन से केसेस है. Then in next case, have appropriate claims for ECGC and others, if any, been duly lodged and settled, and give detail of claims rejected. कोई claims reject हो गए, whether the rejection is appropriately considered while determining the provisioning requirement. तो ECGC केस में भी आपको डिटेल चेक करनी है. यू कैन आस्क द डिटेल फ्रॉम द बैंक इटसेल्फ. उसमें आप चेक कर सकते हो ईसीजी क्लेम जो है लॉज्ड है, और कोई क्लेम अगर रिजेक्टेड है तो क्या रीजंस है, और उसके रिजेक्शन के केस में क्या क्या प्रोविजनिंग है. तो जो रीजन सुन दिए हैं फॉर रिजेक्शन, दैट आल्सो एज ए ऑडिटर वी शुड चेक इट आउट, एंड देन आल्सो चेक द जो post rejections and adequate care for the these logic claim based on the first rejection, और उसकी आप डिटेल मेंशन कर सकते हो. Then in case in respect of non-performing assets, has the branch obtained valuation reports from the approved valuer. तो एनपीए के केसेस में इफ द अकाउंट्स आर एनपीए, तो उसमें भी बैंक हैव टू गो फॉर द वैल्यूएशन वंस इन 3 years. अगर बैंक ने नहीं ली वैल्यूएशन रिपोर्ट्स, because on that valuation then they will see it's a D1, D2, D3 are the loss assets. तो उस केसेस में एज ए ऑडिटर वी शुड फर्स्ट चेक द बैंक पॉलिसी, जो हेड ऑफिस की गाइडलाइंस है, जो हेड ऑफिस गाइडलाइंस है, यू शुड आस्क दैट, एंड देन यू शुड आल्सो आस्क द बैंक मैनेजर जो आपकी ओवर ड्यू वैल्यूएशन है, आपकी जो ओवर ड्यूज है अकाउंट्स, प्लीज प्रोवाइड द डिटेल्स, एंड देन वी शुड चेक कि कितना टाइम है, क्यों वैल्यूएशन रिपोर्ट नहीं रिसीव हुई, वी कैन मेंशन इट देयर. एंड आल्सो ऑन सैंपल बेसिस यू शुड चेक हाउसिंग लोन, कोई आपका एनपीए है, या व्हीकल लोन, या एग्रीकल्चर ट्रैक्टर लोन है जो एनपी है, जिनकी रिपोर्ट्स नहीं आई, उसको आप चेक कर सकते हो, एंड देन यू कैन मेंशन इनटू द कमेंट बॉक्स उसका सीरियल नंबर, नेम ऑफ द बोरोवर, अकाउंट नंबर, सैंक्शन लिमिट, बैलेंस आउटस्टैंडिंग, क्या सिक्योरिटी है, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, लेटेस्ट वैल्यूएशन रिपोर्ट, दैट आल्सो you can mention it there. And then in the case examined by you, has the branch complied with the recovery policy prescribed by the controlling authority of the bank with respect to compromise settlement and right of cases, detail of cases of compromise settlement and right of cases involving right of waiver in excess of 50 lakh rupees. So in this case regarding the compromise settlement right of case, अगेन यू शुड आस्क द गाइडलाइंस इशू बाय द हेड ऑफिस. एक उसकी आप डिटेल ले लीजिए जो आपके ड्यूरिंग द ईयर जो अकाउंट्स कॉम्प्रोमाइज सेटल्ड या फिर राइट ऑफ हुए हैं उसको आप चेक कर सकते हैं, एंड आल्सो चेक द डिटेल जो 50 लाख रुपीस से अबोव है अकाउंट, उसको आप चेक कर सकते हो अगर उसको राइट ऑफ या वेव ऑफ हुआ है, एंड देन
you can provide the detail, उसके serial number, name of the borrower, account number, sanction limit, balance outstanding, compromise settlement, compromise settlement amount, recovery affected, recovery to be affected, that also you can mention into the comment box. And in the next is the branch prompt in ensuring execution of decrees obtained for recovery from the defaulting borrowers, give age wise analysis of decrees obtained and pending execution. तो इस केस में भी यू कैन आस्क द बैंक मैनेजर कि कौन कौन से अकाउंट्स हैं जिसकी डिक्रीज एग्जीक्यूट हो गई है टाइमली, जो आपके फॉर एग्जांपल कोई डिफॉल्टर्स है उसकी आपने डिक्रीज है उसकी आप डिटेल मांग सकते हो, एंड देन उसकी एज वाइज एनालिसिस चेक कर सकते हो कि कौन से किन की एग्जीक्यूट हो गई है, किन की एग्जीक्यूशन नहीं है, क्या पेंडिंग्स है, एंड देन यू कैन गिव इनटू द कमेंट बॉक्स. एंड देन वेदर इन द केसेस concluded the recoveries have been properly appropriated against the principal interest as per the bank policy of the bank. तो इसमें भी आपकी बैंक की पॉलिसीज हैं, whether the branch are following as per the bank procedure, and on that you can mention as per our test check these are the detail, yeah, these are no such accounts are there. And then in cases where the documents are held at CPO, कई बार क्या होता है हम लोग ब्रांचेस ऑडिट करने जाते हैं तो वो हर बार ये कहते हैं जी ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर द सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर, तो वहाँ पे सीपीओ ऑफिस जो है वहाँ पे है, तो वी हैव टू मेंशन कि हमने वो डॉक्यूमेंट्स चेक करे हैं टेस्ट चेक बेसिस पे, या इफ वी चेक ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स वेदर वी आर सेटिस्फाइड आर नॉट, तो एज ए ऑडिटर हमें सीपीसी वहाँ पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे फाइल्स निकलवानी पड़ेगी. फर्स्ट यू कैन नोट डाउन ऑल द डॉक्यूमेंट जो जो भी आपके अकाउंट्स में रिक्वायर्ड है, ओरिजिनल है, सेक्शन लेटर्स हैं, या फिर आपके मोर्गेज के ऊपर, या फिर आपके चार्जेस के ऊपर है, तो दैट यू कैन मेंशन. यू शुड विजिट द सीपीसी, आप चेक करिए, एंड बाई चांस इफ इट्स नॉट अवेलेबल, अगर आपने नहीं चेक करे यू कैन मेंशन हियर, या कोई रिपोर्ट्स नहीं मिली. इन वन केस आई टोल्ड यू अर्लियर कि वी हैव नॉट फाइंड द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जो उसके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स से ओरिजिनल नहीं थे, ओनली फोटोकॉपीज वाज देयर, फोटोकॉपी भी नहीं थी उसकी, तो दैट वी हैव मेंशन, इवन वी कैन मेंशन आल्सो एज द प्रोबेबल फ्रॉड्स. Then the list of the major deficiency in credit review, monitoring and the supervision. यहाँ पे पूरी डिटेल मांग ली आपकी, जो हमने लास्ट में करना है, either it's for the new account or the old account, की रिव्यू, मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन. तो दैट वी हैव टू प्रोवाइड द डिटेल. कोई मेजर डेफिशिएंसी है, फॉर एग्जांपल किसी की डीपी कैलकुलेशन ठीक नहीं है, या फिर उनका स्टॉक स्टेटमेंट नॉट रिसीव्ड, या फिर जो पीरियोडिकल वैल्यूएशन of assets in case of NPA, or automation of NPA SMA, जो even RBI की policy circular also was there कि आपको automation of NPA, no system of follow up for obtaining current financial data, review, renewal, NPA in case of over limit, analysis of stock statement with the audited financial statement. This is also very important. You can also mention it. क्या होता है, that also we had already discussed कि आपकी स्टॉक स्टेटमेंट है, उसमें तो स्टॉक आपको मिलेगा बहुत ज्यादा, बट जो ऑडिटेड है उसमें कम मिलेगा. बट व्हाट्स द सिस्टम देयर, whether there are some analysis or not, अगर 5-10% variation then it's okay, but if there are very huge variation, whether बैंक मैनेजर एनालिसिस इट और नोट चेक कर रहा है, अगर उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन है तो वेदर रिवाइज डीपी चेक करनी है, दैट इज आवर ड्यूटी आल्सो, उसके बेसिस पे एनपी मेंशन कर सकते हो, और हियर यू शुड मेंशन द डिटेल, क्योंकि कोई ऐसा सिस्टम नहीं है. देन द नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी, अभी तो हमने करें डिस्कस फंड बेस्ड फैसिलिटी, हियर इट्स द नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी. तो नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज में फर्स्ट वी हैव टू प्रोवाइड द डिटेल लिस्ट ऑफ द बोरोवर विद डिटेल ऑफ एलसी डिवॉल्ट आर द गारंटी इन्वोक ड्यूरिंग द ईयर. तो इसके लिए यू शुड आस्क द बैंक मैनेजर कि आप एक डिटेल प्रोवाइड करिए, जितने भी एलसी डिवॉल्ट और गारंटी इन्वोक ड्यूरिंग द ईयर है, उसमें आप मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर में भी आप ले सकते हो. इफ देयर आर नो एलसी डिवॉल्ट और गारंटी इन्वोक, बैंक गारंटी इन्वोक, तो उसको आप एमआरएल में लिखवा सकते हो. दिस इज द कमांड, आप फिनेकल से आप चेक कर सकते हो. एलसी का है कमांड HDCLIABR, और बीजी के केस में HGILR. ये इसके बेसिस पे आप फिनेकल में चेक कर सकते हो वेदर दीज आर एनी केसेस इन द ड्यूरिंग द ईयर और नॉट. एंड अगर कोई एलसी डिवॉल्व हो गया तो व्हाट्स द बैंक पॉलिसी, बैंक को क्या करना चाहिए, इट शुड बी डेबिटेड इनटू द कैश क्रेडिट. अगर कैश क्रेडिट है सीसी अकाउंट में, तो इन मैनी केसेस कई बार आपको मिलेगा कि उन्होंने सेपरेट अकाउंट ओपन कर दिया, उन्होंने डेबिट नहीं करा बिकॉज देयर आर ओवर ड्यू लिमिट है, दे कांट डू इट, तो सेपरेट अकाउंट में
तो दैट बोथ अकाउंट शुड बी एनपी। आप इसको चेक कर सकते हो केस स्टडीज ऑफ द एनपी अकाउंट में, वेयर दैट वी हैव डिस्कस। और इन दैट केस आप डिटेल दे सकते हो कि नो सच केसेस आर देयर एज पर आवर एमआरएल, आर द फॉलोइंग केसेस आर देयर। उसमें आप सीरियल नंबर, invocation date, party name, beneficiary name, amount recovery date, that you can mention. Then in next case, list of borrower where the LC has been dissolved or guarantee has been invoked but not paid amount thereof. So in this case also you should ask the management representation letter or check the details. उसको आपको चेक डिटेल चेक करनी है कि ये पेमेंट इज मेड आफ्टर फॉलोइंग द लेट डाउन प्रोसीजर एंड फॉलो ऑफ द रिकवरी फॉर्म ऑफ द बोरोवर। तो वो पूरी डिटेल चेक करके अगर कोई अकाउंट नहीं है तो यू कैन मेंशन एज पर एमआरएल नो अकाउंट्स आर देयर, और इफ सम अकाउंट्स आर देयर यू शुड प्रोवाइड द डिटेल, उसका सीरियल नंबर, इन्वोकेशन डेट, पार्टी नेम, बेनिफिशियरी नेम, अमाउंट, रीजन फॉर नॉन पेमेंट. And then next is list of instances where interchangeability between the fund based and non-fund based facility was allowed subsequent to the development of LC invocation of BG. तो इस केसेस में भी आपको चेक करने हैं, यू हैव टू वेरीफाई द इंस्टेंसेस by checking total outstanding in such facility vis-a-vis the sanction limit, post LC development and BG invocation instances, if any, or that you can report. So these are basically regarding the advances which we have to report in our revised LFAR format. So again, I am saying now it's not like that we should do like yes, no, not applicable. Puri detail they are asking from us, our comments, our views. So please, my request to once again to all of you, please go through, प्लीज गो थ्रू रिवाइज लफार फॉर्मेट। उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है प्लीज एक दो, वंस और ट्वाइस और थ्री टाइम्स और फोर टाइम्स उसके एक बार गो थ्रू करिए। अगर आपने अच्छे से चेक कर लिया तो इट मीन्स आपने 60-70% ऑडिट कंप्लीट कर दिया। सो माय सिंसियर थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो we will discuss on some other point. So till then, bye bye, take care, thank you very much.